Hello dear students, very good morning to everyone. So today I am going to start your first chapter, chapter number 1, nutrition in plants. Alright. So in this chapter we are going to discuss about all these topics. So your topics are nutrients, mode of nutrition in plants, where we will discuss about autotrophic and heterotrophic mode of nutrition. In heterotrophic mode of nutrition, we will discuss about parasitic, saprophytic, symbiotic and insectivorous plants. Alright. So here one question must come in your mind. What is nutrition? ऑलराइट सो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक मोड है फूड इनटेक करने का किसी भी ऑर्गेनिजम्स का. ऑब्वियसली एवरी ऑर्गेनिजम्स नीड फूड फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर देयर ग्रोथ. ठीक है. सो कोई भी ऑर्गेनिजम्स जब फूड इनटेक करता है और वो फूड बॉडी के द्वारा यूटिलाइज होता है, सो उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन. सो वी कैन से दैट nutrition is a mode of taking food by an organism and its utilization by the body. ठीक है. You know that the components of food are proteins, fats, vitamins, minerals, carbohydrates, and these components of food are necessary for our body for a proper growth, and these components are called nutrients. सो जो ये कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये क्या करते हैं? बॉडी को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं. सो हेयर वी कैन से दैट फूड कंटेन्स सर्टेन कंपोनेंट विच आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. ओके. सो कार्बोहाइड्रेट, protein, fats, vitamins, minerals, all are the necessary components for the growth of a body. Now the next topic is modes of nutrition in plants. So nutrition in plants is classified into two main types nutrition. The first one is autotrophic and the second one is heterotrophic. So here first I am going to discuss about autotrophic mode of nutrition. Auto means होता है self and trops mean nourishment, self nourishment. So in this type of nutrition, the green plants manufacture their own food from simple raw material. जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना जो फूड है खुद से प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल रॉ मटेरियल. सिंपल रॉ मटेरियल जैसे कि आपका सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. Okay, so the process of synthesizing food in plants in the presence of sunlight is called photosynthesis. ठीक है. So photosynthesis क्या होता है? जब प्लांट फूड प्रिपेयर करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस. सो हियर द वर्ड फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन्स होता है लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स कंबाइन. So we can say that the process of synthesizing food in plants in the presence of sunlight is called photosynthesis. So यहाँ पे आपने ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा. ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? When plants makes their own food from the simple raw material such as sunlight, carbon dioxide and water. So this process is known as autotrophic nutrition in plants. Auto means self. प्लांट अपना फूड जो है सेल्फ प्रिपेयर्ड कर रहे हैं. ठीक है. सो प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स भी बोला जाता है क्योंकि वो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर्ड करते हैं. एंड जो प्रोसेस होती है फूड सिंथेसाइज की इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस. उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस. सो आई होप you all have clear about it, what is autotrophic mode of nutrition and what is photosynthesis. So in this picture you can see plants make their own food with the help of sunlight. ठीक है. प्लांट को फूड बनाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सबसे इम्पॉर्टेंट है सनलाइट.
वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से मिलेगा? ऑब्वियसली सॉइल से मिलेगा। रूट्स उसे एब्जॉर्व करती हैं और ट्यूब्स के थ्रू वो लीव्स तक पहुंचता है, ठीक है ना। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लीफ में। क्लोरोफिल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर for synthesizing the food and carbon dioxide which is released by the animals. So plant को food बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स एंड सनलाइट एंड क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है। सो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किस में होता है? प्लांट के लीफ में होता है। तो लीव्स आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। इसीलिए लीफ को फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स भी कहते हैं, क्योंकि लीफ में ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, ठीक है। लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और क्लोरोफिल का क्या काम होता है? वो सन की जो एनर्जी है उसे ट्रैप करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और लीव्स में एक टाइनी पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं, उसे कहते हैं। So here you can see the structure of stomata, and stomata is present underside the leaves. ये जो होते हैं टाइनी पोर्स होते हैं, ठीक है ना। एंड द प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स लेते हैं। जो रूट्स होती है, प्लांट की जो रूट्स होती है वो एब्जॉर्ब करती है वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड ट्रांसपोर्ट देम अप टू द लीव्स। ओके, सो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या क्या ज़रूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सो इस प्रोसेस को एक इक्वेशन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आपको चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। तो जो फूड स्टोर होगा एज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन रिलीज होती है। एज यू नो दैट कि ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है। प्लांट रिलीज ऑक्सीजन, ठीक है, और ये ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं।